not God's will to heal them. क्या एक भी आयत है जब कोई बीमार व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और यीशु ने कहा ये पिता की इच्छा नहीं है तुझे चंगा करना? Is there even one verse in the Bible where a sick person came to Jesus and Jesus said, "It is not the Father's will to heal you"? So मैं क्या मानूं? What should I जो believe? ट्रेडिशनल टीचिंग कह रही है या जो मेरा यीशु कह रहा है? Should I believe the traditional teaching or what my Jesus is saying? ओके क्योंकि हमारा रोल मॉडल यीशु मसीह है. Because our role model is Jesus Christ himself. अगर कभी भी इस कलीसिया की लीडरशिप यीशु से हट के कुछ बोले तो 100% यीशु की तरफ मानना. If ever the leadership of this church says anything other than Jesus Christ, 100% look towards Jesus. Paul tells the church, imitate me. Why? Because I imitate Christ. पौलुस कलीसिया से कहता है मेरी नकल करो, मेरा अनुसरण करो क्योंकि मैं मसीह का अनुसरण करता हूं. Okay? That's where a leader gets his power to lead. यहां से एक लीडर को अपनी ताकत मिलती है लीड करने के लिए. Because he follows Jesus. क्योंकि वो यीशु के पीछे चलता है. If a leader doesn't follow Jesus, don't follow that leader. अगर एक लीडर एक अगुवा यीशु के पीछे नहीं चलता उसके पीछे मत जाओ. Okay? So मैं हल्के आराम से ले जाना चाहता हूं. मैंने आपको क्या बोला था? ये बाइबल स्कूल की तरह होगा. मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूं जैसे बिल्कुल बच्चों को सिखाया जाता है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आए हैं. I want to teach you slowly so that how you learn in a Bible school because many people have come from different places here. Okay? मगर इस सीरीज के बाद सशक्त हो जाओगे ये रिलीजियस स्पिरिट के लोगों को आंसर करने के लिए. But after this series you'll be empowered to answer these religious people. Okay? So एक भी आयत नहीं है जब कोई व्यक्ति यीशु के पास आए और यीशु मसीह It's not time for your healing. Not even one verse where a sick person came to Jesus and Jesus said ये तुम्हारी चंगे होने का समय नहीं है अभी. एक भी आयत नहीं है. Not even one verse. ओके एक भी आयत नहीं है कि कोई बीमार व्यक्ति यीशु के पास आया और यीशु ने कहा देख बेटा ये बीमारी पिता ने तुझे कुछ सिखाने के लिए डाली है तो अभी तू पूरा सीखा नहीं है तो अभी पहले सीख फिर मैं तेरे को चंगा करूंगा बाद में. Not even one verse where a sick person came to Jesus and Jesus said Father has given you this sickness to teach you something you have not learned the entire lesson. First learn and then come. Hear this. सुनिए. Sickness is not our teacher, Holy Spirit is. Amen. बीमारी हमारा शिक्षक नहीं है, पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है. Okay, let me say that again. Amen. Sickness is not our teacher, Holy Spirit is. मैं दोबारा कहता हूँ बीमारी हमारा शिक्षक नहीं है, पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है. एक और ट्रेडिशनल टीचिंग है परमेश्वर आपको बीमारी देता है कि ताकि आपको तरस डाले. यीशु मसीह सबसे ज्यादा तरस से भरा था और कभी बीमार नहीं था. There is one more teaching that God gives you sickness to put compassion in you. Jesus was the one moved with compassion all the time, but he was not sick ever. It's the fruit of the Spirit. It comes out of the Spirit, not through suffering. वो आत्मा का फल है, आत्मा के द्वारा उत्पन्न होता है, सताव के द्वारा नहीं. Okay? So let's see what Jesus said to these religious people of his day. देखते हैं यीशु ने अपने समय के धार्मिक लोगों को कैसे जवाब दिया. And he would have said the same thing to the religious people of this day. और वो आज के धार्मिक लोगों को भी ऐसे ही जवाब देता. Matthew 22:29. मत्ती 22:29. Jesus answered and said to them, "You are mistaken, not knowing the scriptures nor the power of God." यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम भूल में पड़े हो, तुम धोखे में पड़े हो, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते. क्योंकि ये वो लोग थे जो घमंड करते थे कि देखो हमें पूरा तोरा आता है, हमें पूरी बाइबल आती है. These were the people who used to boast about knowing the entire Torah, the entire Bible. और यीशु उनसे कह रहे हैं ना तो तुम्हें परमेश्वर के वचन की समझ है ना तुम्हें उसके सामर्थ उसकी पावर की समझ है. And Jesus is answering and telling them, neither do you know the word of God nor do you understand the power of God. Okay? So अब हम वचन से देखेंगे. मैं आपको हल्के हल्के लेके जाऊंगा. Is that clear? मैं आराम से बेस बना के आपको सिखाना चाहता हूं कि आपके अंदर कोई भी डाउट ना हो. Now we look at it from the word. I'm taking it slowly so that I can make a base in your life so you have no doubt. ना केवल आप चंगे रहो मगर हजारों लाखों को चंगा करो यीशु के नाम में. Not only you live a healthy life but you heal thousands upon thousands of people. सबसे पहली बात आपको एक चीज क्या समझनी है. The first thing you have to understand. चंगा करना परमेश्वर का स्वभाव है. To heal is the nature of God. Okay, उसका कैरेक्टर है. It's his very character. God is a healer. परमेश्वर चंगा करता है. That's his character. ये उसका चरित्र का हिस्सा है. Okay? और इतना उसके कैरेक्टर का हिस्सा है कि उसने अपना नाम Amen. इसके ऊपर दे दिया. It is so much a part of his character that there is one of his names based on this character. Exodus 15:26. अभी हमें सारे स्क्रिप्चर में जाएंगे नहीं, मैं आपको जल्दी से बता रहा हूं. वहां पे लिखा है I am the God who heals thee.
निर्गमन 15:26 वहां लिखा है, मैं वो परमेश्वर हूं जो तुझे चंगा करता है। यहोवा राफा, हिंदी में यहोवा राफा। अब सुनो मेरी बात, ये केयरफुली। अगर वो चंगा करता था और आज नहीं करता तो उसको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। If he used to heal but he does not heal today, then he will have to change his name.